লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দুই নাও দুই ভৰি থোৱা কংগ্ৰেছীসকলক লৈ এবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। যিসকল কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ দলত থাকি অন্য দলৰ হৈ কাম কৰি আছে সেই কংগ্ৰেছী নেতাসকলক চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু সেই কংগ্ৰেছীসকলক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বাহিৰ কৰিব লাগে। লগতে যদিহে কংগ্ৰেছ দলে যিকোনো নিৰ্বাচনতে জয়লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছীসকলক দলৰ মজিয়াত আগস্থান দিব লাগিব। এনেদৰে এতিয়া দুই নাও দুই ভৰি থোৱা কংগ্ৰেছীসকলক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দুটা দলৰ হৈ কাম কৰি থকা সকলক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বাহিৰ কৰিব লাগে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। যিসকলৰ এখন ভৰি কংগ্ৰেছত আৰু আন এখন ভৰি অন্য দলত আছে তেওঁলোক সকলোকে চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা বাহিৰ কৰিব লাগে। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণক সমৰ্থন কৰি এই মন্তব্য কৰিছে এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণক সমৰ্থন কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। আমি আগন্তুক সময়ত যিকোনো বিধানসভা নিৰ্বাচন জয় কৰিব লাগিব আৰু নিৰ্বাচন জয় কৰিবলৈ নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক আগবঢ়াব লাগিব। সেইসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী যিসকলে আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোব খায়ো কংগ্ৰেছ দলত আছে সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক এতিয়া আগুৱাই আনিব লাগে। গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত কংগ্ৰেছৰ বিশাল দলীয় সভাত এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক আগবঢ়াই নিলে প্ৰতিটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত। আৰু বিজেপিয়ে নিজৰ দলটোক প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ দৰে চলাই লৈ যায় আৰু আমি এটা পৰিয়ালৰ দৰে আমাৰ দল কংগ্ৰেছক আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ। এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ আমি কংগ্ৰেছ দলক আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ সংস্কৃতি হৈছে আমি গৌৰৱেৰে জয় হিন্দ কওঁ, লগতে অসমতো আমি জয় অসম ধ্বনি দিওঁ। আৰু দুটা দলৰ হৈ কাম কৰি থকা কংগ্ৰেছীসকলক লৈ এইবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। যিসকল কংগ্ৰেছী নেতাৰ এখন ভৰি কংগ্ৰেছ দলত আছে আৰু আনখন ভৰি অন্য দলত আছে সেই কংগ্ৰেছীসকলক চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু সেই কংগ্ৰেছী নেতাসকলক চিনাক্ত কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বাহিৰ কৰিব লাগে। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণক সমৰ্থন কৰি এই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। যিকোনো নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ হ'লে নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকলক দলত আগস্থান দিব লাগিব। নিষ্ঠাবান বুলি ক'লে সেইসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কথা কৈছে যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লাঠিৰ কোব খায়ো কংগ্ৰেছ কৰি আছে। তেনেকুৱা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক আগবঢ়াই আনিব লাগিব আৰু সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক যদি আমি আগবঢ়াই আনো তেতিয়াহ'লে যিকোনো নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিব পাৰিব। এনেদৰেই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। গুজৰাটত কংগ্ৰেছৰ বিশাল দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। পুনৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এখন ভৰি কংগ্ৰেছ দলত আৰু আনখন ভৰি অন্য ৰাজনৈতিক দলত আছে বা কংগ্ৰেছ দলত থাকি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়ক হৈ সাংসদ হৈ বা কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য হৈ অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ কাম কৰি আছে সেই কংগ্ৰেছীসকলক এইবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। সেই কংগ্ৰেছীসকলক চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে আৰু তেতিয়া যিকোনো নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিব পাৰিব। কেৱল মাত্ৰ নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক দলৰ মজিয়াত আগস্থান দিব লাগিব। এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল মন্তব্যটো আগবঢ়াব লৈছোঁ। राहुल गांधी जी जब गुजरात आए तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को चिन्ह कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा
के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है। वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो, बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है। हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह लाभ होगी। आज एक फर्क है भाजपा के संगठन और हमारे संगठन में। भाजपा अपनी संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, यही बात एक नेत्री ने यहाँ पे की। लेकिन कांग्रेस का संगठन हमारा एक संगठन, एक परिवार की तरह हम इस संगठन को चलाना चाहते हैं। और इसीलिए संगठन के साथ साथ मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमें अब अपने हर प्रांतों के कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया तो वो 1 महीने वो जेल के अंदर रखने की ताकत उसमें है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा कुछ नहीं मांगता, अगर आपने उसको फोन करके पूछा कि आपका हाल चाल कैसा है तो वो गर्मी में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराते रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले ही हम कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और ताकतवर करना चाहते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं, उस परिवार के उस मूल्यों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति क्या है? हमारी ये संस्कृति है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और तेलंगाना में जाकर जय तेलंगाना भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर जय बांग्ला भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और असम में जाकर जय आय अखोम भी हम बोलते हैं। ये है हमारी संस्कृति कि हम विभिन्न प्रांतों को हम सम्मान करते हैं। हमारे में हमारा राष्ट्रवाद, हमारा देशभक्ति भी है, लेकिन साथ साथ जो आंचलिकतावाद है, हम आंचलिकतावाद को भी हम सम्मान करते हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी, देशभक्तों की पार्टी, सभी धर्मों की पार्टी, सभी भाषाओं की पार्टी, सभी प्रांतों की पार्टी। और इन्हीं बातों के साथ मुझे जो शब्द कहने के लिए जो मौका मिला, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे समक्ष एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस का पर्चा हमें लहराना है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहूंगा, गुजरात के कांग्रेस वालों, आप अकेले नहीं हो। जब गुजरात का निर्वाचन आएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा में चलकर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय कांग्रेस। आदरणीय राहुल गांधी जी जब गुजरात आए तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को चिन्ह कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है। वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो, बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है। हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह लाभ होगी। आज एक फर्क है भाजपा के संगठन और हमारे संगठन में। भाजपा अपनी संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है,
यही बात एक नेत्री ने यहाँ पे की। लेकिन कांग्रेस का संगठन हमारा एक संगठन, एक परिवार की तरह हम इस संगठन को चलाना चाहते हैं। और इसीलिए संगठन के साथ साथ मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमें अब अपने हर प्रांतों के कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता। अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया तो वो 1 महीने वो जेल के अंदर रखने की ताकत उसमें है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा कुछ नहीं मांगता। अगर आपने उसको फोन करके पूछा कि आपका हाल चाल कैसा है तो वो गर्मी में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराते रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले ही हम कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और ताकतवर करना चाहते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं। उस परिवार के उस मूल्यों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति क्या है? हमारी ये संस्कृति है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और तेलंगाना में जाकर जय तेलंगाना भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर जय बांग्ला भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और असम में जाकर जय आय अखोम भी हम बोलते हैं। ये है हमारी संस्कृति कि हम विभिन्न प्रांतों को हम सम्मान करते हैं। हमारे में हमारा राष्ट्रवाद, हमारा देशभक्ति भी है, लेकिन साथ साथ जो आंचलिकतावाद है, हम आंचलिकतावाद को भी हम सम्मान करते हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी, देशभक्तों की पार्टी, सभी धर्मों की पार्टी, सभी भाषाओं की पार्टी, सभी प्रांतों की पार्टी। और इन्हीं बातों के साथ मुझे जो शब्द कहने के लिए जो मौका मिला, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे समक्ष एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस का पर्चा हमें लहराना है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहूंगा, गुजरात के कांग्रेस वालों, आप अकेले नहीं हो। जब गुजरात का निर्वाचन आएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा चलकर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।